سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، یہ سنن نسائی ہے میرے ہاتھ کے اندر، اس کے اندر یہ فرمان موجود ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نسائی شریف میں حدیث نمبر 3690 ہے، اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ پاک محبوب علیہ السلام کا فرمان کتاب الہبہ باب ہبۃ المشاء کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ کیا فرمایا ہے میرے نبی؟ یہاں پہ روکیں ویڈیو۔ انہوں نے جو باب پڑھا ہے باب ہبۃ المشاء، ہبۃ المشاء، تو ہبۃ المشاء یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا، ابھی بہت کام کی چیز آئے گی۔ انہوں نے جو باب پڑھا ہے اور ہبۃ المشاء جو امام نسائی رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، اس کو بھولیے گا نہیں، آگے میں یاد دلاؤں گا کہ باب کیا ہے اس پہ۔ جی آگے بڑھیں۔ کتاب الہبہ باب ہبۃ المشاء کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ کیا فرمایا ہے میرے نبی علیہ السلام نے؟ فرمایا قوموا، کھڑے ہو جاؤ، قولو، کہو، کیا؟ نستعین برسول اللہ، ہم رب کے نبی سے مدد مانگ رہے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ نستعین، وہ نستعین، وہ فاتحہ والا نستعین جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں نماز کے باہر تم بھول جاتے ہو، یہ نماز کے باہر بھولے نہیں، یہ صحابہ بول رہے ہیں۔ اور کہا کس نے؟ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا قومو، کھڑے ہو جاؤ، قولو، کہو، کہو صحابہ، کہو کیا؟ انا نستعین برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی علیہ السلام سے مدد مانگ رہے ہیں۔ نستعین، دیکھیں انہوں نے ایک حدیث سنن نسائی کی پیش کی ہے، اور اس حدیث کو پیش کرتے ہوئے اتنا بڑا بلنڈر آپ دیکھیں کہ سورہ فاتحہ میں جو توحید کی تعلیم دی گئی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اس شخص نے آپ دیکھیں کہ کتنی جرات کے ساتھ سورہ فاتحہ کا حوالہ بھی دے دیا، کہا یہ نستعین سورہ فاتحہ والا ہے۔ یعنی اب جیسے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، یعنی سورہ فاتحہ میں جو ہم کہتے ہیں وہ الگ چیز ہے، ہم اس کے برخلاف یہاں جا سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ والا نستعین اس کو بول دیے۔ تو چلیے ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اس کی یہ جو روایت انہوں نے پڑھی ہے اس کی سند اور اس کے مت دونوں لحاظ سے ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں سند کے لحاظ سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں، ذرا اس کو دکھائیں ذرا اسکرین پہ اس روایت کو۔ یہ سنن نسائی کا جو نسخہ ہے یہ حدیث نمبر 3688 کے تحت ہے، انہوں نے نمبر غلط بتایا یا کسی اور نسخے کا بتایا ہوگا، لیکن اصل میں جو روایت ہے یہ 3688 کے تحت یہ روایت ہے۔ اس کی سند آپ دیکھیے ذرا، اس کی سند میں ہے کہ ان محمد بن اسحاق ان عمرو بن شعیب۔ یہ ذرا غور سے دیکھیے گا، ان کا دوغلا پن میں آپ کے سامنے ثابت کرتا ہوں۔ یہ جو سند ہے اس میں محمد بن اسحاق ہے، محمد بن اسحاق امام المغازی ہیں، بہت بڑے امام ہیں، اور یہ جو راوی ہیں محمد بن اسحاق رحمہ اللہ، یہ اہل حدیث جو دلائل پیش کرتے ہیں ان میں بہت ساری روایتوں میں یہ آتے ہیں، جیسے طلاق کا مسئلہ آتا ہے اس کی سند میں بھی آتے ہیں محمد بن اسحاق رحمہ اللہ۔ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا، اس میں بھی محمد بن اسحاق رحمہ اللہ آتے ہیں۔ تو یہ لوگ جب بھی ہم کوئی ایسی روایت پیش کرتے ہیں جس میں محمد بن اسحاق آ جائیں تو یہ لوگ محمد بن اسحاق کو دجال بولتے ہیں، کہتے ہیں دجال من الدجاجلہ، کہتے ہیں امام مالک نے ان کو دجال کہا۔ یہ جرح کر کے اس روایت کو ریجیکٹ کرتے تھے۔ سورہ فاتحہ کی مشہور روایت ہے، تھوڑا سا آگے بڑھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کو تھوڑا۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 823۔ یہ نیچے جو حدیث آ گئی آپ کے سامنے 823، اس میں کیا ہے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، فجر کی نماز تھی۔ دیکھیں امام کا ذکر ہے، مقتدی کے ذکر ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرأت کی، ہم نے پیچھے سے قرأت کی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
पर किरात भारी हुई तो आपने सलाम फेरने के बाद कहा कि लअल्लकुम तक़रऊना खल्फा इमामिकुम, कि लगता है कि तुम लोग अपने इमाम के पीछे पढ़ते हो। तो नाम साहबा ने कहा जी हाँ हम पढ़ते हैं। क़ाल ला तफ़अलू इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब, क्या कहा? कहा कि नहीं ऐसा मत करना सिवाय सूरह फातिहा के। फ़इन्नहु ला सलाता लिमन लम यक़रा बिहा, क्योंकि जो सूरह फातिहा नहीं पढ़ेगा उसकी नमाज नहीं होगी। ये वो हदीस है कि जब भी कोई अहले हदीस इसको पढ़ता है, ये हनफियों का तबका, चाहे वो देवबंदी हो चाहे बरेलवी हो, ये मोहम्मद बिन इसहाक पे टूट पड़ते, मोहम्मद बिन इसहाक पर ये लोग टूट पड़ते, उनको दज्जाल और कज़्ज़ाब और न जाने क्या क्या जरे करते। और जब हम मोहम्मद बिन इसहाक रहमुल्लाह की तौसीक साबित कर, दरअसल इमाम मालिक रहमुल्लाह ने जो कहा दज्जाल, वो उनकी पर्सनल नाराजगी थी। मोहम्मद इमामुल मगाज़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं था, कुछ नोक झोंक हो गई थी, कुछ बातचीत हो गई थी, अनबन हो गई थी, तो उन्होंने गुस्से में कह दिया, बाद में उन्होंने रुजू भी कर लिया। ये खुद जो है इनके अरफ और तकमील में लखनवी साहब ने भी लिखा कि उन्होंने जो कहा गुस्से में कहा, बाद में उन्होंने रुजू कर लिया, कोई मसला ही नहीं। लेकिन बिला मतलब के मोहम्मद बिन इसहाक रहमुल्लाह पे लोग टूट पड़ते। जब हम इमाम के पीछे सूरह फातिहा की दलील पेश करते हैं तो इसी रावी पर, इसी सनद पर ये टूट पड़ते भेड़िए की तरह से, जिस सनद से ये अपनी दलील पेश कर रहे हैं, वो भी अकीदे के मसले में, वो भी अकीदे के मसले में यही रावी इनके यहां हुज्जत बन गया। और हम इबादत के मसले में जब पेश करते हैं इसी रावी की हदीस को, तो ये लोग इस पे जरे कर देते हैं। दो तरह की जरे करते हैं, एक तो मोहम्मद बिन इसहाक को दज्जाल कहते हैं, और जब उनकी तौसीक हम साबित कर देते हैं, सारी जरे को रफा कर दे, तो कहते हैं देखो अन से रवायत किया है, तो अगर सेका भी मान लो तो मुदल्लिस से इसकी रवायत काबिल कबूल नहीं की। तो जो रवायत इन्होंने पढ़ा है उसमें मोहम्मद बिन इसहाक अन से रवायत किया, लेकिन ये इनके लिए दलील हो गई। और हम जब पेश करते हैं अबू दाऊद की रवायत, तो कहते हैं, एक तो कहते हैं मोहम्मद बिन इसहाक सेका नहीं, जब हम सेकाहत साबित कर देते हैं तो कहते हैं कि अन से रवायत किया। हालांकि इन्होंने हदसना भी कहा मुस्लिम अहमद की रवायत में। आगे बढ़े, आप देखें अगली रवायत में, हदीस नंबर मुस्लिम अहमद की हदीस नंबर 22745, मुस्लिम अहमद की जो रवायत है, इसमें आप देखेंगे कि इब्ने इसहाक ने हदसनी कह दिया, इब्ने इसहाक ने इसमें हदसनी कह दिया, अन इब्ने इसहाक हदसनी मक़ूल। ये वही रवायत है पूरा कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने की। तो अगर अहले हदीस अदालत से सुन रहे हो तो इसको नोट कर लें, मुस्लिम अहमद की रवायत। और भी कई रवायतों में जिनसे उन्होंने हदसना कहा, लेकिन ये मुस्लिम अहमद की एक रवायत है जिसमें मोहम्मद बिन इसहाक ने हदसनी कह दिया। इसलिए सुनन नबी दाऊद की रवायत पे एतराज नहीं हो सकता है, वहां पे अन है तो एतराज नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां उन्होंने हदसनी कह दिया और मतन सेम है, पूरा वाकया सेम है। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ का मतन अलग है, वाकया अलग है, वहां का वाकया अलग है, सेम वाकया है, सेम बात है, और इमाम इब्ने इसहाक रहमुल्लाह ने हदसना कह दिया है। इसलिए हमारी जो रवायत है, हमारी जो दलील है सूरह फातिहा पढ़ने वाली, वो तो सही साबित होगी। इनके कहां से सही साबित होगी? ये मोहम्मद बिन इसहाक इनकी रवायत में है और वो भी अन से रवायत कर रहा है। ठीक है, ये एक दोगलापन मैंने इनको आपको दिखाया कि इसी सनद से जब हम कोई दलील पेश करते हैं तो ये टूट पड़ते हैं सनद पे, वो भी हम इबादत में पेश करते हैं, और ये अहकाम में और ये अकीदे में इसी सनद से रवायत पेश करेंगे, शर्म नहीं आती इनको। अच्छा, दूसरी चीज हम वापस पलटते हैं, बिल्कुल शुरू में देखिए, सनद में एक और चीज दिखाता हूं, एक दोगलापन इनको मैंने दिखा दिया, दूसरा भी दिखाता हूं। मोहम्मद बिन इसहाक से आगे की सनद देखें, अन अम्र बिन शुऐब अन अबीही अन जद्दीही, बड़ा ही मशहूर सिलसिला है और बहुत सारी अहादीस, बहुत सारी रवायतें इसी रूट से आती है, इसी सनद से आती हैं। एक दो रवायत नहीं, बहुत सारी रवायतें आती हैं। उन्हीं में से एक रवायत है कि ईदैन में हम लोग जो ईद की नमाज में पहली रकत में जो हम 7 तकबीर कहते हैं, दूसरी में 5 तकबीर कहते हैं। तो ये जो हमारी दलील है वो भी इसी रूट से आती है, नहीं उसकी बहुत सारी सनद है, लेकिन एक सनद ये भी है। आगे जरा दिखाएं, सुनन नबी दाऊद की हदीस लाएं, हदीस नंबर 1151 ये आप देख रहे हैं, ये सुनन नबी दाऊद की हदीस है, और इसमें यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अत-तकबीरु फिल फित्र सबउन फिल उला व खम्सुन फिल आखिरा वल क़िराअतु बअदहुमा किल्तहिमा, कि तकबीर जो कहेंगे तकबीरात ज़वाइद, ये ईद उल फित्र में पहली रकत में 7 है और दूसरी रकत में कितनी है? 5। ये जो हमारा अहले हदीस का जो अमल है, ये लोग ईद में इनकी तकबीरात में गड़बड़ है, अलग तादाद इनकी। ये जो हमारी तादाद है वो कई सनदों से है, उसमें से एक सनद ये है अम्र बिन शुऐब अन अबीही अन जद्दी। तो ये जो सनद है इस पर ये लोग टूट पड़ते हैं, यहां भी लोग जरा करना शुरू कर देते कि ये जो चैन है ये सही नहीं है, लेकिन वो
अकीदे के मसले में देखिए कितनी जो है ढटाई से वो रवायत उस सनद से वो अपनी दलील पेश कर दिया। तो ये इनका मामला, ये दूसरा दोगलापन है इनका, यानी इस सनद का जो अगला टुकड़ा है उस टुकड़े से अगर हम कोई दलील पेश करते तो ये लोग नहीं मानते, रिजेक्ट कर देते, उसको खारिज कर देते, सनद पे टूट पड़ते। और आज ये लोग उसी सनद से बड़े मजे से पेश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई इनको पकड़ेगा नहीं, इनको कोई इनका जो करतूत याद नहीं दिलाएगा। तो हम अभी मतन पर नहीं, अभी हम सनद पे बात कर रहे हैं कि मैं इनका करतूत याद दिला रहा हूं कि किस तरह की ये इनका दोगलापन है कि इन सनदों से हम अगर कोई रवायत पेश करते हैं या सनद पे टूट पड़ते हैं, जबकि हम अहकाम में कोई बात पेश करते हैं, और ये अकीदे में इस तरह की सनदों से आई हुई रवायत को ये लोग दलील बना रहे हैं। ये मैंने सनद पर बात कर ली। अब आइए मतन पर आते हैं, वापस से आते हैं उस हदीस पे। देखिए उसमें है क्या, हदीस नंबर सुनन नसई की 3688, उसके अल्फाज क्या। देखिए मामला यह है कि जंग के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कैदी आए। तो ये जो कबीले हवाजिन है, इनके भी औरतें और कुछ मर्द ये कैद कर लिए गए, जंगी कैदी यानी गुलाम बना लिया जाता उनको। तो ये जब कैद हो गए और कैद होकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में कुछ आए और कुछ को तकसीम किया गया, सहाबे कराम के हिस्से में आए, ये कैदी बांट दिए गए, गुलाम बना लिए गए क्योंकि जंगी कैदी थे। बाद में इनके रिश्तेदार लोग इस्लाम कबूल कर लेते हैं। इस्लाम कबूल करने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। तो देखिए सहाबी कहते हैं कि कुन्ना इंद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे। तो ये अतत वफ़द हवाजिन, हवाजिन कबीले हवाजिन के कुछ लोग आए और ये लोग असल में मुसलमान हो गए थे। तो इन्होंने आके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के रसूल, ये जिन लोगों को आपने गिरफ्तार किया है, कैदी बना लिया है, गुलाम बना लिया है, तो इनको अगर आप, हम मुसलमान हो चुके हैं, तो अगर आप इनको छोड़ देते तो बड़ी मेहरबानी होती। फन अलैना, हम पर एहसान करें, इनको छोड़ दें। फकाल, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो हमने दो चीजें अपनी कस्टडी में लिया है, एक तो तुम्हारी जो मालो दौलत था वो भी हमने ले लिया है, जंग में हमारी फतेह हुई है, हमने लिया, और तुम्हारे आदमी भी और औरतें भी गुलाम बनाई गई। इन दोनों में से कोई एक चीज आप लोगों को दी जा सकती है, आप क्या लोगे? पैसे चाहिए, माल चाहिए, या जो तुम्हारे लोग कैदी बना लिए गए हैं, इन दोनों में से क्या चाहिए आपको? तो उन लोगों ने क्या कहा कि बल नख्तार निसाअना व अबनाअना, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हमें इख्तियार दिया, कद खय्यरतना बैना अहसाबिना व अमवालिना बल नख्तार निसाअना व अबनाअना, हमारी जो औरतें, हमारे जो बच्चे, वो हमको वापस कर दीजिए, इसको हम मुंतखब करते हैं, ये हमें लौटा दीजिए। तो फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अम्मा मा कान ली व लिबनी अब्दुल मुत्तलिब फवलकुम, कि देखो मेरे और अब्दुल मुत्तलिब के हिस्से में जो आया, बनु अब्दुल मुत्तलिब के हिस्से में जो आया वो मैं तुम्हें अता करता हूं, मैं तुम्हें देता हूं। मेरे हिस्से में जो आया है, हमारे परिवार के हिस्से में, अहले बैत के हिस्से में जो आया वो तो हमने दे दिया, लेकिन जो मैं बांट चुका हूं मुसलमानों में, तो उन तक जा चुका है, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, उनकी मिल्कियत में हम दे चुके हैं, तो ये आप उनको जाके राजी करो, उनसे जाके बात करो आप। तो कहा कि अल्लाह ने फरमाया कि फैदा सल्लैतु अज़्ज़ुहरा फक़ूमू, ऐसा करो कि जब ज़ोहर की नमाज होगी तो नमाज के बाद तुम लोग खड़े हो जाना, फक़ूल, और कहना कि इन्ना नस्तईनु बिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मुमिनीन अबिल मुस्लिमीन फी निसाइना व अबनाइना, और कहना कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश के साथ आप लोगों से अर्ज करते हैं कि हमारी जो औरतें हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो हमें वापस कर दो। यहां मकसद क्या है? मकसद ये है, यहां पूरा जो सियाक है वाक़े का, वो ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिफारिशी बना के मुसलमानों से अपील कर रहे हैं। अल्लाह के नबी से मदद मांगने की बात नहीं हो रही है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिफारिशी बना के और मुसलमानों से जो इनके हिस्से में बांट दिए गए थे, इनकी औरतें और इनके लोग गुलाम बना लिए गए थे, उनको वापस मांगने का मुतालबा कर रहे हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिफारिशी के तौर पर पेश कर रहे हैं। अच्छा, ये जो मैं सिफारिशी की बात कर रहा हूं, ये बाकायदा उस रवायत में, मुस्लिम अहमद की रवायत में ये लफ्ज मौजूद है। यहां तो देखिए मोहम्मद बिन इसहाक है, अनसे रवायत किया, ये सनद ज़ईफ है, लेकिन मुस्लिम अहमद में मोहम्मद बिन इसहाक ने इसी वाक़े में हदसना कहा है, लेकिन वहां पे ये अल्फाज बदल रहे हैं, ये अल्फाज नहीं है। अब आगे बढ़े, मुस्लिम अहमद की रवायत भी दिखा दें। मुस्लिम अहमद की वो जो रवायत है वो हदीस नंबर है 7037,
जरा सनद देखें, हदसना याकूब हदसना अबी अन मोहम्मद बिन इसहाक क़ाला व हदसनी, यहां इन्होंने हदसनी कह दिया, रिवायत हो गई सही। सुनन नसई की जो रिवायत थी वो अन था, वहां सनद में मसला था, लेकिन यहां इन्होंने हदसनी कह दिया, प्रॉब्लम खत्म हो गई। लेकिन नीचे जो मतन के अल्फाज है वो चेंज हो रहे हैं। हमने जब आपको मिसाल देते ना कि सुनन नबी दाऊद में हम जो सूरह फातिहा वाला वाकया पेश करते हैं, वो भी मुस्लिम अहमद में हम आके देखते हैं तो मोहम्मद बिन इसहाक हदसना बोल रहे हैं, लेकिन वहां मतन सेम है, यानी वाकया पूरा सेम है, उसमें कोई तब्दीली नहीं हो रही। लेकिन यहां पे तब्दीली क्या हो रही है कि सुनन नसई में नस्तईन का लफ्ज था, यहां पे क्या है, इन्ना नस्तशफिउ बिरसूलिल्लाह। यहां के अल्फाज देखिए बहुत ही वाज़ेह। अगर कोई जिद करेगा नस्तईन के लफ्ज पर तो हम ये कहेंगे भैया उस लफ्ज के साथ जो सनद उसको सही साबित करके बताओ। हालांकि नस्तईनों का मतलब वही है जो इस रवायत में हदीस की शरह होती है। वहां नस्तईन का मतलब वो नहीं जो धड़ल्ले से बंदे ने कह दिया कि वो सूरह फातिहा वाला नस्तईन है। ये सूरह फातिहा वाला नस्तईन नहीं है, ये शिफात वाला है। हम इस बात की दलील दे रहे हैं कि मुस्लिम अहमद में बाकायदा दूसरी हदीस है, वो वजाहत कर रही है ये कौन सा नस्तईन है, ये सूरह फातिहा वाला नस्तईन नहीं है। इस बरेलवी आलिम ने बहुत बड़ी खयानत की, बहुत बड़ी बदनामी की है। ये सूरह फातिहा वाला नस्तईन नहीं है, ये तो दावा ठोक दिया हवा में, लेकिन कोई दलील नहीं दिया। मैं आपको दलील दे रहा हूं कि ये शिफात वाला नस्तईन है। दलील यह है कि मुस्लिम अहमद में जहां मोहम्मद बिन इसहाक हदसना बोले जो सनद सही है वो सनद तो सही है, ये सनद सही है। और इसमें जो सही अल्फाज आ रहे हैं आप देखें, फरमाया कि फकुल हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ऐसा करना, जोहर की नमाज के बाद लोगों से क्या कहना। देखिए बहुत ही यहां पे मफहूम बिल्कुल क्लियर हो रहा। कहा कि कहना है इन्ना नस्तशफिउ बिरसूलिल्लाहि इलल मुस्लिमीन, कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिफारिशी बना रहे हैं मुसलमानों के पास। यानी हमारे नबी सिफारिश करेंगे मुसलमानों से कि भैया इनके जो औरतें और बच्चे तुम्हारे हिस्से में आए हैं इन्हें लौटा दो, अभी मुस्लिमीन इला रसूलिल्लाह। देखिए अगला पार्ट बड़ा है, मैं यहां सिर्फ नबी के बारे में, मुसलमानों के बारे में, कि हम मुसलमानों को भी सिफारिशी बनाएंगे कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश करें। यानी अल्लाह के नबी के हिस्से में जो आया वो हमको लौटा दे, मुसलमानों को जो हिस्से में आया वो लौटा दे। अल्लाह के नबी सिफारिश करते मुसलमानों से, मुसलमान सिफारिश करते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और दोनों तरफ से हमको जो हमारे आदमी जो इनके कब्जे में आए हैं इनके सामने लौटा दिया जाए। तो ये पूरा मामला क्या है कि जंग में इनके बच्चे, इनकी औरतें जो कैदी बना लिए गए थे, इनके आदमी और इनकी औरतें जो कैदी बना लिए गए थे, उनको वापस ले रहे हैं, और वापस लेने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश करवा रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको तरीका बताया कि नमाज के बाद खड़े होकर तुम लोग अपील करना मुसलमानों से, साहबे किराम से, और मुझे सिफारिशी बना लेना, मैं इनसे कहूंगा ये लौटाएंगे, और ये लोग कहेंगे हम लौटा देंगे, हम सब लौटा देंगे आपको। तो ये बताइए क्या गैरुल्लाह से ये नस्तईनों वाला मामला है यहाँ पे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मदद मांग रहे? भाई इनके बाल बच्चे उनके कब्जे में आ जा चुके हैं, जंगी तौर पे, मतलब बाकायदा कानूनी तौर पे उनके पास गए हैं, ये लोग उसको वापस मांग रहे। इसके लिए नस्तईनों का लफ्ज आया है सुनन नसई में, और यहाँ पे शिफात का लफ्ज आया है, नस्तशफिउ का लफ्ज आया है। बात बहुत क्लियर है, बहुत वाज़ेह है, इसमें जरा सा भी कोई पेचीदगी नहीं है कि भाई अपनी चीज जो इनके तहवील में जा चुकी है उसको वापस लेने के लिए सिफारिश कर रहे हैं। ये सिफारिश की बात है, ये मदद मांगने वाली बात नहीं है। और आप देखिए दोनों तरफ है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सिफारिशी बना रहे हैं, सहाबा को भी सिफारिशी बना रहे हैं। तो क्या आप दूसरे, यानी जो इस रवायत में जो अगला जुमला है, क्या उसको बुनियाद बनाकर आप कहेंगे कि किसी से भी मुसलमान से मदद मांगो? यानी हर आदमी से आप जो है, यानी फिर नस्तईनों तो सब पर फिट हो गया, कुछ बचा नहीं, हर मुसलमान को ले जाके आपने नस्तईनों फिट कर दिया। तो बहरहाल ये मुस्लिम अहमद की रवायत, और इसकी सनद सही है। देखिए यहां मोहम्मद बिन इसहाक ने हदसनी कहा, वो जो नस्तईनों लेकर आप पकड़े हुए थे सूरह फातिहा से मिला रहे थे, उसकी सनद सही नहीं, इसकी सनद सही है। उस रवायत को सही तभी माना जाएगा जब उसका मफहूम भी वही मुराद लिया जाए जो यहां पर है। जो नस्तशफिउ में जो मफहूम है, यही मफहूम वहां भी मुराद ले तो हम कहते हैं इसके सपोर्ट से रवायत भी सही हो जाएगी। लेकिन वहां अगर आप नस्तईनों में कुछ भी गड़बड़ी करेंगे, कोई दूसरा मफहूम निकालेंगे, तो मफहूम इससे टकरा जाएगा, फिर वो चीज ऑटोमेटिक रवायत ज़ईफ हो जाएगी। तो बहरहाल ये मैंने मतन की आपके सामने वजाहत कर दिया कि यहां मदद मांगने के वाला यानी सूरह फातिहा वाला नस्तईनों नहीं है, बल्कि ये सिफारिश करने वाली बात है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, एक और चीज, बहुत ही अहम चीज, कि इन लोगों का प्रॉब्लम ये है ना, ये जो बिदअती हजरात हैं, ये कोई भी हदीस का जो असल मकसूद है,
یعنی کوئی محدث ایک چیز کو پروف کرنے کے لیے، ایک چیز کو بتانے کے لیے حدیث کو پیش کرتا ہے، وہ چیز نہیں لیں گے، اس کو یہ لوگ پک اپ نہیں کریں گے، وہ اس میں اپنی بدعت ڈھونڈنے بیٹھ جائیں گے۔ اب جیسے دیکھیے محرم 10 محرم کا روزہ ہے، عاشورہ کا روزہ ہے، اب جب محدثین وہ روایت اپنی کتب احادیث میں ذکر کرتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے۔ یہ لوگ وہاں سے حدیث اٹھائیں گے اور استدلال کیا کریں گے کہ 10 محرم کو سب سے زیادہ کھانا کھانا ہے، بیٹھ کے دیگیں چڑھانا ہے، میلاد منانا ہے، ربیع الاول میں میلاد منانے بیٹھ جائیں گے، وہ محرم میں کیا کہتے ہیں جشن منانے بیٹھ جائیں گے۔ تو آپ سوچیں کہ جہاں روزے کی بات ہے، اصل اس لیے حدیثیں پیش کی جاتی ہیں، وہ استدلال کچھ اور کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہاں پہ یہ پوری روایت جو پیش کی ہے، اس عالم نے شروع میں باب کو پڑھا بھی ہے، اس کی ویڈیو میں شروع میں دیکھیں گے تو انہوں نے کہا بھی ہے کہ ہیبت المشا، امام نسائی رحمہ اللہ نے باب باندھا ہیبت المشا۔ ہیبت المشا کیا ہوتا ہے؟ ہیبت المشا جو پراپرٹی جس میں کئی لوگوں کا حصہ، یا ہیبت المشا یعنی ایسے مال کا ہیبا، ہیبا مطلب گفٹ، اور مشا مطلب مشترکہ مال، یعنی اونرشپ، جوائنٹ اونرشپ ہے، یعنی کئی چیزوں کا، کئی ایک مال میں کئی لوگ حصے دار ہیں، جوائنٹ پراپرٹی ہے، مشترکہ مال ہے۔ مشترکہ مال میں ہیبا کرنا جیسے وراثت ہے، کسی آدمی کا بچے ہیں اور باپ مر گیا، باپ کے مرنے کے بعد پوری پراپرٹی بچوں گے، لیکن ابھی تقسیم نہیں ہوا تو پراپرٹی کیا ہے؟ وہ پراپرٹی سارے وارثین کی مشترکہ ہے۔ وراثت کی تقسیم سے پہلے مال وراثت مشترکہ ہے۔ اب اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی وارث تقسیم سے پہلے ہیبا کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ چاروں امام میں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، یہ تینوں امام کہتے ہیں کہ جو مشترکہ جو پراپرٹی ہے اس کی تقسیم سے پہلے ہیبا ہو سکتا ہے، گفٹ ہو سکتا ہے، کوئی بھی اپنا حصہ گفٹ کر سکتا ہے۔ لیکن احناف کرتے نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، پراپرٹی جب تک تقسیم، جو قابل تقسیم ہو، جب تک تقسیم نہ ہو جائے ہیبا آپ نہیں کر سکتے، آپ ہیبا کر نہیں سکتے۔ اسی لیے وراثت میں ایک مسئلہ آتا ہے نا کہ باپ کے مرنے کے بعد سب بھائیوں نے دبا لیا اور بہنوں نے کہا کہ ہم کو نہیں چاہیے، تو کسی بھی دیوبندی، حنفی، بریلوی، دیوبندی کسی بھی ویب سائٹ پہ جا کے آپ چیک کریں، سرچ کریں کہ اگر بہن نے وراثت کا حصہ معاف کر دیا تو معاف ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو سارے حنفی فتویٰ دیتے ہوئے نظر آئیں گے نہیں معاف ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ہیبت المشا جائز نہیں ہے۔ بہن جو ہے یعنی مرنے والے کی جو بیٹی ہے، ابھی وراثت تقسیم نہیں ہوئی، اس کے پاس، اس کے ہاتھ میں آیا نہیں ہے، اونرشپ اس کو منتقل نہیں ہوئی ہے، تو اس سے پہلے وہ ہیبا نہیں کر سکتی، بھائی کو دے نہیں سکتی ہے۔ اس لیے لوگ ہر ویب سائٹ میں کیا بتاتے ہیں کہ اگر بہن کو بھائی کو دینا ہو تو پہلے ریسیو کرے، پہلے اس کی اونرشپ لے، لینے کے بعد دوبارہ بھائی کو دے۔ تو یہ جو نوٹنکی لوگ ہیں نا، ہیلا بازی، اب صاف صاف کہتے تھے بھائی بہن کا حصہ کائے کو بھائی کو دے دے گی، لیکن انہوں نے جو نوٹنکی کر کے رکھا ہے، ہیلا بہانا کر کے کہ نہیں وہ بہن پہلے لے لو بعد میں دے، کیوں دے بھیا؟ بہرحال میں تمہیں دوسری طرف جا رہا ہوں، میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ جو وراثت کے مسئلے میں ان کا جو ساری ویب سائٹ پر فتویٰ پڑا ہوا ہے کہ وراثت کی تقسیم سے پہلے بہن بھائی کو نہیں دے سکتی ہے، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ان کے یہاں ہیبت المشا جائز نہیں ہے۔ اس فتوے کے پیچھے جو اصل لاجک ہے وہ یہ کہ ان کے یہاں ہیبت المشا جائز ہی نہیں ہے، اور یہ حنفی عالم بڑے دھڑلے کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ امام نسائی نے باب باندھا ہیبت المشا، تو جو باب باندھا ہے، جو بتا رہے ہیں امام نسائی رحمہ اللہ، وہ بتا رہے ہیں کہ ہیبت المشا جائز ہے۔ اس کی دلیل یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں جو لوگ آئے، جو ان کے مرد یعنی قبیلے حوازن کے جو مرد عورتیں آئے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کا تھے، مشترکہ تھا سب، لیکن اللہ کے نبی نے ہیبا کر دیا، میں دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہیبا کر دیا، اس میں کئی لوگوں کا حصہ تھا، لیکن آپ نے اس کو ہیبا کر دیا۔ تو امام نسائی رحمہ اللہ اس حدیث کو پیش کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہیبت المشا جائز ہے، اور راجح یہی ہے، ائمہ اربعہ میں سے 3 امام، مذاہب اربعہ میں سے 3 مذہب کا اتفاق ہے، اور جمہور اہل علم کا یہی کہنا ہے کہ ہیبت المشا جائز ہے۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ یہ حدیث جو اصل پیغام دے رہی ہے، جو اصل مسئلہ بتا رہی ہے، یہ حنفی لوگ مانتی نہیں اس کو، یہ بریلوی عالم نہیں مانتا اس بات کو۔ تو ہیبت المشا پر یہ امام نسائی نے باب باندھا، جو حدیث جو اصل پیغام دے رہی ہے، ہیبت المشا کو جائز قرار دے رہی، اس کو یہ بندہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہاں دوسرے عقیدے کا مسئلہ نکالیے، جو چیز ہے، جو ہے حدیث میں اس کو مانیے، اور جو چیز حدیث میں نہیں ہے زبردستی اس کو اس میں گھسیڑ لے۔ یہ کتنی بڑی غلط بیانی ہے۔
बहरहाल कहने का मतलब ये कि इस हदीस में ऐसी कोई बात नहीं है जो इस जो है बरेलवी आलिम साहब ने साबित करने की कोशिश की। वो लफ्ज से पकड़ के नस्तईन हो आ गया, भाई लफ्ज आ गया तो जो चाहो इस्तेमाल कर लोगे। अच्छा मैं बात खत्म करूंगा, लेकिन एक और मिसाल देते हैं, बड़ी ही दिलचस्प होगी इंशाल्लाह। सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 4003। 4003। अगर हर जगह नस्तईनो देख के आप कहते हैं सूरह फातिहा वाला नस्तईनो है, तो अंजाम क्या होगा? अंजाम ये होगा कि आप जो है घास फूस ढेला और पत्थर सबसे मदद मांगना शुरू कर दोगे। ये सही बुखारी की हदीस देखें 4003। इसमें यह है कि हुसैन अलैहिस्सलाम, हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये सही बुखारी में जो अलैहिस्सलाम जगह जगह लिखा हुआ, ये बाद में जो है जो नुस्खाख हम लोगों ने लिखा, पुराने नुस्खों में आप देखेंगे तो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिलेगा उसमें। तो इसमें लिखा है कि हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये कहते हैं, अन्ना अली अपने वालिद से रिवायत करते हैं, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहते हैं कि कानत ली शारिफुम मिन नसीबी मिन अल मग़नमी यौम बद्र। कहते हैं कि जंग बद्र में मेरे हिस्से में ऊंट आया, मेरे हिस्से में आया ऊंटनी आई। वकान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आतानी मिम्मा आफा अल्लाहु अलैहि मिन अल खुम्स यौमइदिन, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में जो खुम्स आया था उसमें से भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ी अल्लाह तआला को दे दिया था। तो दो जगह से इनको मिल गया, एक तो इनका हिस्सा आया और दूसरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में जो है तो वहां से भी उठा के अली रज़ी अल्लाह तआला को दे दिया। तो उनके पास अच्छा खासा माल जमा हो गया। कहते हैं कि जब मेरे पास इतना माल जमा हो गया तो फलम्मा अरदतु अन अबतनी बिफातिमा अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाहु अन्हा, यहां अलैहिस्सलाम में बता चुका है कि नुस्खाख ने लिखा। तो फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जिनसे इनकी शादी हुई थी, ये कह रहे हैं कि फिर जब मेरे पास माल जमा हो गया, मेरी हैसियत हो गई कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को, अपनी बीवी को अपने घर ला सकूं, रुखसती कर सकूं, निकाह तो हो चुका था, रुखसती करना था, तो उसके लिए पैसे चाहिए थे, इंतजाम था। तो बोले कि जब मेरे पास इतना सारा इंतजाम हो गया तो फिर मैंने ये प्लान किया, मैंने इरादा किया कि अब मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को यानी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को मैं अपने यहाँ ला सकता हूं। कहते हैं कि वअत रजुलन सवागन फी बनी कनका अयरतहिल मई, तो बनु कनका के एक शख्स को उन्होंने कहा कि मेरे साथ चलो, फनाती बेइज़खिर, हम इज़खिर घास एक होती है तो उसको भी हम लेकर आते हैं, फारत तो नबी हो उसको मिने सवागीन, तो हम उसको बेचेंगे, यानी वो घास भी निकाल के लाते हैं उसको बेचेंगे, उससे भी कुछ पैसा आएगा। फनस्तईन बिही फी वलीमति उर्सी, उससे हम अपनी शादी का वलीमा करेंगे, यानी अपने वलीमे में हम उससे मदद लेंगे। अब यहां पे जो फनस्तईन बिही है, ये हा का मर्जा क्या है, यानी इज़खिर घास है, ये लाएंगे बेचेंगे, इससे हम मदद लेंगे अपने वलीमे में। आप जरा सोचे क्या इससे वो कोई ये इस्तेलाह करने बैठ जाए कि घास से भी मदद तलब करेंगे? ये बरेली मुफ्ती की तरह से, बरेली आलिम की तरह से कोई कहेगा ये सूरह फातिहा वाला नस्तईन यहां आ गया, ये सूरह फातिहा वाला नस्तईन है, यहां पे सूरह फातिहा वाला नस्तईन है, क्या इससे कोई ये साबित करेगा घास फूस से भी मदद लेना जायज है? ये घास से करे उसको लाएंगे बेचेंगे, उससे हम फनस्तईन भी फी वलीमति उर्सी, उससे हम मदद लेंगे। तो यहां मतलब गैरुल्लाह से मदद मांगना नहीं है भाई, एक चीज है उसके जरिए कोई चीज हासिल करना है, तो यहां पे गैरुल्लाह से मदद मांगना नहीं है। इनकी तरह से टेढ़ा को इस्तेमाल करे तो चलो बुत को भी पूजा करना शुरू कर दे, पत्थरों को पूजा करना शुरू कर दे, घास फूस को ढेला पत्थर को पूजना शुरू कर दे, इस तरह से कहीं भी नस्तईनो आ गया तो उसे ले जाके सूरह फातिहा वाला नस्तईनो समझ लेना। इस बरेली से कोई पूछे कि सही बुखारी में जो नस्तईना आया हुआ क्या सूरह फातिहा वाला नस्तईना, अगर नहीं है तो फिर वो सुनन नसई का नस्तईनो आ गया, उसको कैसे मिला दिया? तो खुलासा यह है कि मेरे भाइयों की इस रवायत में गैरुल्लाह से मदद मांगने वाली कोई बात नहीं है। और आखिरी बात जो ज़हन में रखना जरूरी है कि जो अफराद जिंदा हैं और किसी काम पे कुदरत रखते हैं, उस मामले में उनसे जाके आप मदद मांगते हैं, उनसे अगर किसी तरह की हेल्प लेते हैं तो ये नाजायज नहीं है। खुद अल्लाह ताला ने, खुद अल्लाह की हदीस अल्लाह फी औनिल अब्दी मा कान अल अर्दु फी औनि अखी, कि अल्लाह ताला बंदे की मदद नहीं होता जब तक बंदा अपने भाई की मदद करता है। ये जिंदा लोगों के बारे में, यानी आप एक चीज की कुदरत रखते हैं, एक चीज को कर सकते हैं, आप जिंदा है और कोई काम कर सकते हैं, तो नेचुरल है। अब अगर कोई आपसे हेल्प ले रहा है तो ये गैरुल्लाह से मदद मांगना नहीं है। गैरुल्लाह से मदद मांगना मतलब जो गैर फित्री है, जो एक आदमी कर ही नहीं सकता। जैसे आप किसी आदमी से कहें कि मुझे औलाद दे दो, ये उसके बस का नहीं है, ये अल्लाह का काम है, ये हराम होना जायज है। एक आदमी मर चुका, जिसका आप पीर कहते हैं, वली कहते हैं, वो कब्र के अंदर वो तुम्हारी आवाज नहीं सुनता,
اس سے جا کے کہتے ہیں آپ مجھے مدد مانگیں. یہ ہے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش طلب کی جا رہی ہے. قبیلہ حوازن کے جو غلام قید کر لیے گئے تھے ان کو واپس لینے کی سفارش کر رہے ہیں. تو بات کیا ہے سفارش کی ہے؟ وہ بھی سفارش کس سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ابھی حالت حیات میں ہے، ابھی زندہ ہیں، حیات ہیں. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا تو کسی نے انکار نہیں کیا کہ اگر ایک آدمی زندہ ہے اور کوئی ایسا کام جو کر سکتا ہے آپ اس سے جا کے ہیلپ لے سکتے ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ہے اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، تو اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو یہ اصل بات ہے، یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ زندہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے جب وہ زندہ تھے اور جو جس معاملے میں ان سے سفارش طلب کی جا رہی تھی وہ آپ کر سکتے ہیں اور آپ نے کیا بھی. یہ مسئلہ ہے، اس میں ایھاک نعبد و ایھاک نستعین والا مسئلہ بالکل نہیں ہے. تو اتنی ساری وضاحتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، انشاءاللہ یہ بات واضح ہو گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ان شرکیات اور ان کفریات سے ہمیں محفوظ رکھے. آمین.